علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کیا فاروق اعظم نے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اے جذب عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا، میں تو دیار پاک کے قابل نہ تھا، مگر قربان جاؤں پھر بھی مدینے بولا لیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید حسان اللہ حسینی ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پروگرام ہے، اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے پروگرامز میں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سناتے ہیں حضرت عمر فاروق کا۔ دیکھیں، جو کنگ ہوتا ہے نا، کنگ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کنگ۔ جو بھی کنگ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیلس میں رہتا ہے، لگژریس پیلس ہوتا ہے، اس کا لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کی لگژری پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کی گاڑیاں لگژری ہوتی ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے بلڈ پروف کارز ہوتی ہیں، پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، روڈ بالکل اس کو جیم کر دیا جاتا ہے، ٹریفک کو۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی کیا وجہ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ بادشاہ بہت ہی ایکسپینسو ڈریسز پہنتے ہیں، بہت مہنگے، بہت ہی ایکسپینسو ان کے شوز ہوتے ہیں، بہت ہی ایکسپینسو ان کا فوڈ ہوتا ہے، مہنگے کھانے کھاتے ہیں، مہنگا لگژری لائف سٹائل اپناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ہم نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کو دیکھا، ان کا لائف سٹائل کم ہوتا ہے بادشاہوں کو زیادہ، جو کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی ریاست کا۔ آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، مسلمان ریاستوں میں بھی اور غیر مسلم ریاستوں میں بھی۔ لیکن ایک بادشاہ ایسا تھا، ایک بادشاہ ایسا تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ مانتا ہی نہیں تھا، جبکہ تھا وہ بادشاہ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کلاس میں مانیٹر ہوں اور آپ اپنے آپ کو مانیٹر نہ مانیں؟ آپ تو مانیں گے کہ آپ مانیٹر ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کنگ ہو اور وہ اپنے آپ کو کنگ نہ مانے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا ایک بادشاہ تھا۔ روم کے بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنا ایمبیسڈر، میسنجر، قاصد، جو پیغام لے کے جاتا ہے، آپ کا میسیج لے کے آگے جاتے ہیں، آگے جا کے میسیج دیتے ہیں دوسرے کنٹری میں۔ آج بھی اس کی مثالیں، سفیر آتے ہیں کسی ملک کے تو وہاں کا پیغام اور وہاں کا ڈسکشن لے کر آتے ہیں، اور ڈسکشن پورٹل سارا پھر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس طرح روم کے بادشاہ نے، سلطنت روم بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ بھی ظاہر اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، ان کا لائف سٹائل بھی تھا، اور ان کو تو جناب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ جس پہ چاہے ظلم کرے، جس سے چاہے ناانصافی کرے، بادشاہ کو کون پوچھے۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ مدینہ، اور وہاں کے جو حکمران ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر ملو، ان کا حال چال پوچھو اور بولو سلطنت روم کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ آپ سے آپ کا احوال جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ وہ قاصد آیا، سفر کر کے پہلے بیٹا، گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ایروپلین بھی نہیں ہوتے تھے، ہاں ایروپلین بھی نہیں ہوتے تھے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ
ट्रेन्स भी नहीं होती थी, ये सिस्टम ही नहीं था, ये तो बहुत बाद में आया। तो लोग मवेशियों पर जाते थे, यानी जानवरों पर। जब आप देखते हैं कुर्बानी के जानवर देखते हैं ना, तो इस तरह के जानवरों पर लोग सफ़र करते थे, यही उनकी कार होती थी, इसी के साथ वो चला करते थे। बहुत दिन लगते थे उनको कहीं पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह। तो कई दिन का सफ़र करके जब वो पहुंचे, मदीने आए, तो उन्होंने मदीने में, पूरे मदीने में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि मुझे कोई महल नज़र आए, कोई पैलेस नज़र आए, ताकि मुझे पता चले बादशाह सलामत यहाँ रहते हैं। उन्होंने देखा पूरे मदीने में उन्हें कोई पैलेस, कोई महल नहीं मिला, पूरे मदीने में उन्हें कोई महल नहीं मिला। तो वो हैरान हुए कि बादशाह रहते कहाँ हैं। और बादशाह कौन थे? उमर फारूक। कौन थे बादशाह? उमर फारूक। मदीने के लोगों से उन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत जो है उमर फारूक आपके जो हुक्मरान है, वो यहाँ का बादशाह कौन है? उन्होंने पूछा पहले ये बताइए यहाँ का बादशाह कौन? कहा भाई बादशाह तो कोई नहीं, हाँ हमारे एक अमीर हैं, हमारे एक अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इस वक्त मदीने से बाहर कहीं काम से गए हुए हैं, तो उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, बादशाह तो यहाँ कोई नहीं रहता। वो हैरान हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और यहाँ कोई बादशाह ही नहीं है, वो अमीर। बहरहाल उसने जब ये सुना तो वो तजस्सुस में कि क्या पता वही बादशाह, और आखिर उसे डिक्लेयर हो गया कि वही बादशाह है। तो उनकी तलाश में निकल गया मदीने से बाहर। देखा तो एक दरख्त के साए में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक सपोर्टिंग चीज़ के साथ ज़मीन पर सो रहे हैं, ज़मीन पर दरख्त के साए में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये वो बादशाह है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े बादशाहों की नींद उड़ी हुई है। नहीं, उनका एक दबदबा था, उनका एक, आप कह लें उनका एक रोब था, एक उनका इम्प्रेशन था लोगों पर कि इतने बड़े आदमी थे। कहा ये तो वो बादशाह जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। और इसकी आजिज़ी का और सादगी का, सिंपलिसिटी का आलम यह है कि ये ज़मीन पर सो रहा है दरख्त के नीचे, और आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कोई पहरा देने वाला भी नहीं है। तो वो अपने आप में ये कहने लगा कि खुदा की कसम, जब वो उठे हज़रत उमर, तो कहने लगा कि आप ही हक हो, आपका दीन ही हक है, क्योंकि हमारा बादशाह तो जुल्म करता है, हमारा बादशाह तो अय्याशी करता है, हमारा बादशाह तो बहुत बड़ी घर में रहता है, बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स में रहता है, मगर आपकी सादगी देखकर मुझे अंदाजा होता है कि इतना बड़ा बादशाह जिसकी वजह से बादशाहों की नींदें उड़ी हुई हैं, और हमारे बादशाहों को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, क्योंकि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके लोगों के साथ सख्ती करते हैं, नरमी नहीं करते, इस वजह से उनको नींद नहीं आती, और आप राहत की नींद सोते हैं आज जी से ज़मीन पर। आप इतने सादा इंसान हैं, काश अगर मैं मैसेंजर बन के, एम्बेसडर बन के, सफ़ीर कासिद बन के ना आता, तो मैं आपके हाथ पर आपके दीन को कबूल कर लेता। सारे मिलकर जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या बात थी बताइए हमारे रियल हीरोज़ की, क्या उनका आलम था, कितने वो सिंपल थे, कितने बड़े थे, मगर पैसे फजूल खर्च नहीं करते थे। आज हमें सीखना चाहिए कि हम जो एक्स्ट्रा फरमाइशें करते हैं अपने पेरेंट्स से, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करवाना चाहते हैं, तो हमें सीखना चाहिए वो कितने बड़े बादशाह थे। वो जो चाहते खा सकते थे, जो चाहते बाय कर सकते थे, जो चाहते घर ला सकते थे, लेकिन नहीं लाते थे। तो ये हैं हमारे रोल मॉडल्स कि जिनके बारे में आज हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी आप बताइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे कि अफान ने भी पिछले एपिसोड में कहा था कि शैतान उनको देखकर कांपता था। अल्लाह अकबर। तो मैं इसी हवाले से आपको एक शेर सुनाना चाहूँ। बिल्कुल सुनाइए। आपका नाम तवुस की जगह काफी है, आपके नाम से शैतान का सर फिरता है। कल भी रातों को मदीने में उमर फिरता था, आज भी दिल के मदीने में उमर फिरता है। सारे मिलकर जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। आप आगे माइक दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बताएंगे आप हजरत उमर के हवाले से? शेर सुनाएंगी? चलें सुनाइए, शेर सुनाइए। जुदा बातिल को हक से कर दिया फारूक आजम ने, अलम इस्लाम का ऊंचा किया फारूक आजम ने। उन्हीं की नाम की तासीर दिया, खत की है बत्ती, रुके दरिया को जारी कर दिया फारूक आजम ने। उमर को देख कर शैतान खुद रास्ता बदल लेता,
वो पाया हक से लोगों दबदबा। फारूक आजम ने नबी के बाद घर कोई नबी होते उमर होते, नबी से बालिया ये मर्तबा। फारूक आजम ने जुदा बातिल को हक से कर दिया। फारूक आजम ने अलम इस्लाम का ऊंचा किया। फारूक आजम ने। क्या बात है, सारे मिलकर जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जी बेटा, क्या सुनाएंगी? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद खिलाफत तारीख का सुनहरा दौर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सारे मिलकर जोर से बोलेंगे जी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान मजीद यकजा करने का मशवरा दिया था। क्या बात है, सारे मिलकर जोर से बोलेंगे जी। आप बताइए, आप सुनाइए, दीजिए इनको माइक जी। हजरत उमर फारूक के बारे में क्या बताएंगे? जोर से बोले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कम बोलना समझदारी है, कम खाना सेहत है, कम सोना इबादत है। क्या बात है, सारे मिलकर जोर से बोलेंगे जी। क्या सुना रही? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौरे हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस, हमस, दमिश्क, उर्दन, आज़रबाईजान समेत 1000 से ज़ायद शहर फतह किए। 1000 से जायद आपने शहर फतह किए और मैं अक्सर के नाम इस बच्ची ने बताए। सारे मिलकर जोर से बोलेंगे जी। उनको दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सुनाएंगे जनाब? अक़वाल सुनाऊंगा जी, सुनाइए। हर शय का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि उसको फौरन किया जाए। क्या बात है, हजरत उमर फारूक ने फरमाया हर शय का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि उसको फौरन किया जाए, यानी नेक काम, अच्छा काम फौरन करना चाहिए। सारे मिलकर जोर से बोलेंगे जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा, सुनाया, सीखा। तो हमें चाहिए कि जो बातें हैं इन्हें हम हमेशा याद रखें, जो बातें इन्हें हम हमेशा याद रखें और इन बातों पे हम हमेशा अमल करें। शाबाश। आप लोगों ने चूंकि अशार सुनाए तो मैं भी आपको हजरत उमर फारूक के हवाले से 2 शेर सुनाता हूँ, फिर मनक़बत सैयद हसानुल्लाह हुसैनी सुनाएंगे, उसी पर हम इंशाल्लाह रुखसत हो जाएंगे। देखिए, उमर वो जिसकी आमद पर खुले काबे का दरवाजा, उमर वो जिसकी आमद पर खुले काबे का दरवाजा, उमर है इंतखाबे रब, करो अजमत का अंदाजा। उमर की अजमतें पूछो मोहम्मद के मुसल्ले से, उमर की अजमतें पूछो मोहम्मद के मुसल्ले से। उमर जन्नत का वारिस है ये कहता हूँ धड़ल्ले से, उमर जन्नत का वारिस है ये कहता हूँ धड़ल्ले से। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप जवाब पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आजम का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आजम का। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफा फारूक आजम का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आजम का। करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे है रहमत, करम अल्लाह का हर दम नबी की मुझ पे है रहमत। मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आजम का, मुझे है दो जहां में आसरा फारूक आजम का। पसे सिद्दीक़
اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا